Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Ishu ACCA classes. So in this video I'm going to explain the chapter 12. The name is Reporting from F8 Kaplan study book. Okay, so I'm basically explaining this chapter because lots of students find this chapter very difficult and they're unable to solve the question. So I hope after the end of this lecture you guys gonna be solve the question very quickly and this chapter gonna be easy, I hope, and I will try my best to make it easy for you guys. So basically, once the audit work is completed, means auditor has performed the procedure, gathered the evidence. So auditor have to prepare the report, and in that report, the auditor will form a conclusion whether the financial statement of an particular entity gives true or fair view or not. Okay, so there are few elements of this report that need to be understand, and what the things we should include in what situation. So along with what type of question will be asked and what the things you have to remember, I will go through the I will explain during this chapter. Okay, so the first आपका question maybe asked is like कि एलिमेंट रिपोर्ट का एलिमेंट क्या है एंड व्हाट आर इट्स पर्पस. ठीक है, सो वन बाय वन में एलिमेंट को पहले नोट डाउन करती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड इट्स पर्पस. Okay, so these all are the element of the auditor report. Okay, so अब एक चीज़ यू हैव टू बी केयरफुल. रिपोर्ट दो टाइप का होता है, ओपिनियन भी दो टाइप का होता है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड. मैं ही बताते जाऊंगी कैसे कैसे. तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ आवर टाइटल. सो हम लोग टाइटल क्या देते हैं, बेसिकली यू डोंट हैव टू वरीड. आपको रिपोर्ट बनाने में ये सब चीज़ यूज़ नहीं करना है. आपको सिंपली 5 मार्क्स का पूछेगा. मैं क्वेश्चन भी आगे दिखा दूंगी एंड इफ़ टाइम मिला आई विल सॉल्व वन. ओके, one question for you guys. So first is title, and title में we will write down the independent auditor report. Okay, so basically ये title means the auditor report shall have a title which clearly indicates that it is the report of an independent auditor. ठीक है, ऑडिटर के रिपोर्ट में I mean there should be a title and which clearly indicate that it is a report of an independent auditor. Why so? Because इसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है? Because it helps to distinguish this report from the rest of the report, or you can say the other report.
उसके लिए इस चीज़ का ज़रूरी है। सो ठीक है, मीन्स बाकी रिपोर्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए वी हैव टू मेंशन द टाइटल, एंड टाइटल में क्या होता है, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। आफ्टर दैट हम लोग को क्या रखना है, एड्रेसी, ठीक है। सो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिपोर्ट इज एड्रेसी. So the auditor report shall be addressed as required by the circumstance of an engagement. ठीक है, this is particularly determined by the law or regulation, but it is usually to the shareholder. Okay, and why so? What's the purpose of this addressee? So this helps to clarify who may rely on the opinion and who may not, such as third party. ठीक है, जैसे थर्ड पार्टी है, कौन से मतलब पार्टीज रिले होंगे, कौन से नहीं, सो ये एड्रेसी के थ्रू पता चलता है. तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या मेंशन करते हैं, टू द शेयर होल्डर, और जिस कंपनी का ऑडिट करें टू द शेयर होल्डर ऑफ डैश कंपनी. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में यू कैन सी, या यू कैन सी हियर इन इलस्ट्रेशन 1, टू द शेयर होल्डर ऑफ मुरारी कंपनी. ओके ओके, सो नाउ ऑडिटर ओपिनियन. सो ओपिनियन यहाँ पे दो टाइप का होता है. ऑडिटर ओपिनियन इज बेसिकली टू टाइप. मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ. ओपिनियन, सो एक तो होता है मॉडिफाइड एंड दूसरा होता है नॉट मॉडिफाइड, मीन्स सॉरी अनमॉडिफाइड. मॉडिफाइड, ओके. सो एक होता है मॉडिफाइड एंड दूसरा अनमॉडिफाइड. अनमोडिफाइड तो इट मीन्स देर इज नथिंग मिस्टेक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मिस्टेक नहीं, आई मीन मिस स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट मटेरियल. मतलब जो भी मटेरियल मिस्टेक नहीं होता है तब हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है. अगर मिस स्टेटमेंट है बट मटेरियल नहीं है, बट इन दैट केस ऑल्सो वी विल से दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू. मैंने क्या बोला, मैं खुद कंफ्यूज हुई. लेट मी रिपीट वंस अगेन. मीन्स पहले तो ये सोचो मिस स्टेटमेंट हुआ, मिस स्टेटमेंट, ठीक है. एंड ये मिस स्टेटमेंट एक तो आपका मटेरियल है एंड दूसरा नॉट मटेरियल, ठीक है. तो नॉट मटेरियल के केस में it will show true and fair view. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मिस स्टेटमेंट है बट नॉट मटेरियल, ठीक है. नॉट मटेरियल इट मीन्स ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा. द ऑडिटर विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मीन्स इट विल से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट एंटिटी शो ट्रू एंड फेयर व्यू. ओके. अब दूसरा मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, ठीक है. मटेरियल है, मटेरियल मीन्स ऐसा मिस स्टेटमेंट दैट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इंटेंडेड यूजर, है कि नहीं. सो बट नॉट परवेसिव. अब परवेसिव का मतलब यहाँ समझते हैं पहले हम लोग. सो परवेसिव मीन्स एक पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट अगर वो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लाइन आइटम को अफेक्ट नहीं कर रहा है, सो वो परवेसिव नहीं है. बट इफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लाइन आइटम को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज द परवेसिव. यू कैन सी द एग्जांपल आगे दिया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन इट. बट इतना समझो, जो भी मिस स्टेटमेंट है, इफ दैट गोइंग टू अफेक्ट द होल लाइन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट कुड बी SOFP, PNL, इन दैट केस इट इज़ परवेसिव. बट अगर नहीं अफेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर एक दो आइटम को कर रहा है, इन दैट केस नॉट परवेसिव, ठीक है. अब तो नॉट मटेरियल के केस में तो अनमोडिफाइड. मटेरियल हुआ, जैसे मटेरियल हुआ ओपिनियन मॉडिफाइड तो होगा, बट टाइप ऑफ ओपिनियन विल बी डिफरेंट. अब वो डिपेंड करता है वेदर इट्स परवेसिव और नॉट परवेसिव. जैसे ये तो मैंने बोला कि ओपिनियन आपका मॉडिफाइड और अनमोडिफाइड होता है, राइट. एंड सिमिलरली मिस स्टेटमेंट आपका होता है एक मटेरियल, नॉट मटेरियल. नॉट मटेरियल केस में इट्स वेरी सिंपल. कि आपका हो जाएगा ओपिनियन अनमोडिफाइड. ओके. अब मटेरियल के केस में आपको देखना है, या मटेरियल हुआ तो मॉडिफाइड, ठीक है. मटेरियल हुआ जैसे ही तो मॉडिफाइड. अब यहाँ पे देखना है ये मटेरियल इज परवेसिव और नॉट परवेसिव, ये चेक करना है.
एंड परवेसिव का मीनिंग मैंने क्या बोला, दैट लाइन मतलब ऐसा मिस स्टेटमेंट दैट्स गोइंग टू अफेक्ट द होल लाइन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नॉट परवेसिव किस में, ऐसा मिस स्टेटमेंट दैट नॉट गोइंग टू अफेक्ट द होल लाइन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर परवेसिव हुआ इन दैट केस वी विल गिव ए एडवर्स ओपिनियन। अगर नॉट परवेसिव हुआ इन दैट केस क्वालिफाइड ओपिनियन। आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच। ओ मेरा कीबोर्ड का क्यू बटन काम ही नहीं कर रहा है, सो लेट इट बी। कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा शायद, आई थिंक। Okay, so where was I? Okay, so if misstatement is not material, then the auditor will give unmodified opinion. It means it will state that the financial statement of a particular entity shows true and fair view. So if it is material misstatement, if the misstatement is material, then obviously auditor going to be give modified opinion. So the opinion will be modified, but the type of opinion will depend whether the misstatement is pervasive or not pervasive. Pervasive means if that misstatement going to affect the whole line item of the financial statement, then that's a pervasive. And if it is not going to affect the whole line item of the financial statement, then it is not pervasive. In case of pervasive, the adverse opinion will be given by the auditor. It means they will state that the financial statement do not give true and fair view. They will clearly state that. And in case of qualified opinion, sorry, in case of not pervasive opinion, sorry, in case of material misstatement but not pervasive, in that case qualified opinion is issued by the auditor, in which means that except for that particular misstatement, rest of the item of the financial statement shows true and fair view. ओके, सो बेसिकली आपका अगर परवेसिव है इन दैट केस एडवर्स ओपिनियन देगा ऑडिटर, और कहेगा कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पर्टिकुलर एंटिटी का, यू कैन सी द सेंटेंस अबव इन द इलस्ट्रेशन कि दे विल स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, अगर नॉट परवेसिव का केस है इन दैट केस एक्सेप्ट फॉर जो मिस स्टेटमेंट हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे लाइन आइटम गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, अब दूसरा ये तो हो गया मिस स्टेटमेंट का। नाउ द पॉइंट इज, अब मान लो कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence। अब इस केस में what kind of opinion will be issued by the auditor। ठीक है, inability to obtain sufficient appropriate evidence, अब यहाँ पे भी सेम चीज, whether it is material or not material। ठीक है, so अगर not material, in that case obviously auditor will issue unmodified opinion, means the true and fair view दे रहा है financial statement, they will state that the financial statement of particular entity shows true and fair view। अगर it's a material misstatement, in that case अब it's again depend whether it's pervasive or not pervasive। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इफ द परवेसिव का केस है, मीन्स मटेरियल परवेसिव। ठीक है, यहाँ पे मैं आई विल सेपरेट दिस थिंग। ओके, मटेरियल के अंदर आता है ये दोनों, वैसे ही। अब अगर ये परवेसिव है, इन दैट केस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
ठीक है, मतलब ऑडिटर विल नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा वी विल सी फर्दर, बाद में देखेंगे हम लोग, आई मीन वी विल सी लेटर ऑन फर्दर, सॉरी, disclaimer of opinion, okay, they will not express the opinion, it means अब नॉट परवेसिव केस में सेम एज above कि क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर दिस रेस्ट ऑफ द आइटम सोज ट्रू एंड फेयर व्यू, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। आपको सिनेरियो दिया होगा, दे माइट टेस्ट यू कि किस टाइप का ओपिनियन देगा इन द MCQ केस, ओके, ये चीज़ आपको याद करना है, इट्स वेरी सिंपल, ओके। सो अब बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया इन्होंने कि इन विच केस द ऑडिटर विल इशू अनमोडिफाइड ओपिनियन, है कि नहीं, कौन कौन सा केस जैसे यहाँ पे एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ हो, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, ये सब चीज़ होगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो था वो मतलब एक रीजनेबल जजमेंट यूज़ करके बनाया गया, ये सब चीज़ कंसिडर करेगा। एंड इफ़ दिस थिंग्स आर परफेक्ट, मतलब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, इन दैट केस मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, इन दैट केस ऑडिटर विल इशू अनमोडिफाइड ओपिनियन, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो मॉडिफाइड ओपिनियन का मैंने बताया देयर विल बी टू केस, एक तो होगा आपका मिस स्टेटमेंट एंड दूसरा होगा इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। अगर मिस स्टेटमेंट हमारा, मिस स्टेटमेंट में दो चीज़ होगा, वेदर इट्स मटेरियल और नॉट मटेरियल, और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस में भी आपका दो चीज़ होगा, मटेरियल नॉट मटेरियल, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार जस्ट रीड आउट कर लो, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लंबे लंबे सेंटेंस में। सो नाउ परवेसिव का मैंने बताया था, ये परवेसिव के बारे में है, ये क्वालिफाइड ओपिनियन कब इशू करेगा, दिस ऑल थिंग आई हैव एक्सप्लेन, जस्ट रीड इट। अब दो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है आपको, ये क्या हो गया, ब्लड क्यों हो गया, या सी क्वालिफाइड और क्या था हमारा परवेसिव, हाँ एक और चीज़, ये परवेसिव जो होता है ना, अभी ये सोच के हम ये पर्टिकुलर जजमेंट पे, मतलब ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है, सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि वेदर कि इट्स वो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम को अफेक्ट करे, सिर्फ वो ही नहीं देखेंगे। व्हाट वी विल सी, अदर थिंग व्हाट वी विल सी इज, अगर वो ह्यूज अमाउंट का भी है, मान लो कि सपोज वो सारे लाइन आइटम को इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट इट्स 150% ऑफ द प्रॉफिट, अगर वो ह्यूज अमाउंट भी है, इन दैट केस ऑल्सो इट कंसिडर टू बी द परवेसिव, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है हम लोग को। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया, ओके। सो नाउ अब एडवर्स ओपिनियन केस में मैंने बताया कब देंगे एडवर्स ओपिनियन, व्हेन द मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, ठीक है। उस केस में हम लोग आई मीन बीइंग ए ऑडिटर वी विल इशू ए एडवर्स ओपिनियन, जिसमें ऑडिटर विल स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इसका एग्जांपल है कि जैसे ले लो, गोइंग कंसर्न बेसिस पे उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, बट वो मतलब वो कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं जाने वाली है, तो इन दैट केस हम लोग को ब्रेकअप बेसिस पे बनना चाहिए था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई मीन मैनेजमेंट को ब्रेकअप बेसिस पे बनाना चाहिए था, बट उसने गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बना दिया। सो मीन्स जो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो रॉन्ग ही बेसिस पे हुआ, सो दैट्स एडवर्स ओपिनियन का केस हो गया। अब कोई सब्सिडरी एक्वायर्ड किया बट नॉन कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ही नहीं बनाया, इन दैट केस भी वो हमारा ये क्या बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन इशू होगा। ये सब एक तीनों एग्जाम्पल दिया हुआ है उस केसेस का। सिमिलरली बिलो एयर, अब यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी किस किस टाइप के केस में करेंगे, आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन रीड, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि लाइक फेलियर ऑफ क्लाइंट टू कीप द एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, है कि नहीं। अब ये चीज़ याद रखना, रिटन रिप्रेजेंटेशन अगर डायरेक्टर रिफ्यूज़ करती है
अब जैसे कि मान लो रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं प्रोवाइड करेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन, इन दैट केस आपको डॉबट आएगी उसकी इंट्रिगिटी पे भी, वेदर कि वो बाकी का जो एविडेंस या कुछ भी दिया वो भी सच है कि झूठ, उस पर आपका डॉबट कास्ट होगा, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करेंगे। उसका भी स्टेप है, मतलब आगे पिछले वाले चैप्टर में आई थिंक था। ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल, आप इसको एक बार रीड आउट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करने वाली चीज़ ये है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब इशू करेंगे, जब ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड वो मटेरियल एंड परवेसिव दोनों का केस है, उस केस में हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करेंगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू मतलब उसमें ऑडिटर बोलेगा दे विल नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट ये याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा। अब एक चीज़ इससे पहले मैं कुछ और दिखाती हूँ, लेट्स हैव ए लुक ऑन दैट फर्स्ट। जैसे यहाँ पे आपने कुछ इलस्ट्रेशन देखा हुआ था राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन 1 देखो, ठीक है। एक बार मैं सारे व्यूअर्स को कहूँगी जस्ट रीड ऑल दिस स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी रिपोर्ट ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 में एक बार रीड आउट करो। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि एवरीथिंग इज सिमिलर, वाई टू रीड, है कि नहीं, बट समथिंग इज डिफरेंट। मैं आपको उसी बताती हूँ। सो एक बार आई मस्ट से कि आप एक बार रीड आउट करना। पहले तो ये टाइटल हो गया, ये एड्रेस ही हो गया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब टाइटल इज नॉट, ये तो कुछ और है। ओके, ओपिनियन का पोर्शन देखो आप, क्या लिखा हुआ है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मुरारी कंपनी, ठीक है, द कंपनी विच कंप्रोमाइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोर्शन एज 31 दिसंबर 20x4, स्टेट ऑफ कम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी। ये लाइन एक बार रीड आउट जरूर करना है, एमसीक्यू में भी टेस्ट कर सकता है। मान लो कि ये ओपिनियन इशू कर रहा है, इसमें से लाइन में कौन सा मतलब मिस्टेक है, क्या चीज़ होना चाहिए था, ऐसे करके पूछ सकता है। सो जस्ट गो एंड रीड थ्रू इट, एक बार जरूर रीड करना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये किस केस में, अनमोडिफाइड के केस में। अब एक आगे देखोगे, अब मॉडिफाइड के केस में देखते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट कैसा है, क्या है। मॉडिफाइड का भी छोड़ते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का ही देखते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड मतलब कि आई मीन क्वालिफाइड को छोड़ के डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का, ये हमारा क्वालिफाइड का हो गया। क्वालिफाइड में सेम होगा, इसका चेंजेस यहाँ पे नीचे आते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहाँ है, एडवर्स ओपिनियन, यस डिस्क्लेमर ओपिनियन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी वेर इंगेज टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मुरारी कंपनी, ठीक है। अर्लियर व्हाट वाज रिटेन, वी हैव, क्या है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द मुरारी कंपनी, ठीक है। बट अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर रहा है, इन दैट केस ये सेंटेंस चेंज हो जाएगी, क्या लिखेगा, वी वेर इंगेज टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मुरारी कंपनी। कंपनी का नाम चेंज होगा, जो कंपनी का होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये सब चीज़ आपको पूछेगा, अगर 5 मार्क्स का पूछता है तो अगर जो भी ओपिनियन इशू कर रहे हो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, मान लो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर रहे हो तो क्या क्या चेंजेस हम लोग को रिपोर्ट में करना होगा, वो आप क्वेश्चन करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, मैं दिखाऊंगी। सो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे द स्टेटमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड इज चेंज टू वी वेर इंगेज टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ये चीज़ हो गया। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, द स्टेटमेंट दैट द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द ऑडिटर ओपिनियन हैज बीन ऑब्टेन इज नॉट इंक्लूडेड। अब एक चीज़ और देखो, इसीलिए मैंने बोला एक बार इसको पढ़ लेना। यहाँ पे देखो, एक बार बताती है एक और चीज़, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या क्या सेंटेंस चेंज करना होगा अगर ओपिनियन मतलब डिफरेंट हो रही है, तो डिफरेंट इशू करना पड़ रहा है तब। यहाँ पे देखो एक चीज़ और, बेसिस ऑफ ओपिनियन कहाँ गया, जरा यहाँ पे बेसिस फॉर ओपिनियन में आपका यहाँ लिखा है, वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर आवर ओपिनियन, ठीक है। अब ये चीज़ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में देखो आप क्या लिखा है, क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर, वो चीज़ ना यहाँ, ओहो
जो वो चीज़ था वो हम लोग यहाँ पे अब इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है ना, ये जो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट जो है ना हमारा, ये ओपिनियन का, ये ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ये भी चेंज होगा जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट ओपिनियन इशू करेंगे। मान लो कि अभी ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर रहे हैं, तो ये जो ऑडिटर ओपिनियन में हमारा हो जाएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और बेसिस फॉर ओपिनियन में हो जाएगा हमारा बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वैसे क्वालिफाइड के लिए है एंड एडवर्स के लिए, वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि ये सब चेंजेस आएंगे। एंड उसी लिए वो स्टेटमेंट जो था अब हम लोग बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करेंगे। वही चीज़ वो स्टेटमेंट बोल रहा है, वो सेंटेंस बोल रहा है। ओह, the statement that sufficient appropriate evidence to provide a basis for the auditor opinion has been obtained is not included, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑडिट बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद आईएएस एंड इंडिपेंडेंस एंड अदर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर पोजिशन विद इन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन rather than basis for disclaimer of opinion section। मतलब अगर आप देखोगे अनमोडिफाइड ओपिनियन वहाँ पे क्वालिफाइड और एडवर्स के केस में वहाँ पे एक स्टेटमेंट इंक्लूड किया जाता है। स्टेटमेंट बोलता है कि उन्होंने ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू आईएसए और इंडिपेंडेंट होके इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब रख के उन्होंने ऑडिट कंडक्ट किया है। वो चीज़ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन केस में हम लोग बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो हम लोग ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में, मतलब यहाँ पे आप देखोगे नंबर 8 वाले में इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर रहे हो तो उसमें की ऑडिट मैटर दैट सो कॉल्ड कैम वो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको याद करना होगा। द फर्स्ट इज कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे बेसिस फॉर ऑडिटर ओपिनियन पैराग्राफ में। और उसके बाद जो स्टेटमेंट था हमारा कि वी हैव बीन ऑडिटेड द कंपनी ऐसे वाला, उसको चेंज करके हम लोग लिखेंगे वी वेर इंगेज टू द ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपनी, ऐसे करके लिखेंगे। तीसरा कि हम लोग ने ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू आईएसए, इंडिपेंडेंस, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वगैरह सब हम लोग कहाँ डालेंगे, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पैराग्राफ में। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में कैम हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। इट कुड बी आस्क्ड इन द आपका सेक्शन सी, ठीक है। तो इसको याद करना बनता है इस पॉइंट सबको। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये वाला लाइन एक बार देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट द फाइनेंशियल स्टेट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अकॉर्डेंस टू आईएसए एंड इशू एंड ऑडिट रिपोर्ट। अब पहले जाके देखोगे क्वालिफाइड वाले केस में ये चीज़ हमारा बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, देखो ये एडवर्स ओपिनियन है तो ये ऑडिटर ओपिनियन को एडवर्स ओपिनियन में चेंज हो जाएगा एंड बेसिस फॉर ओपिनियन को बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में चेंज होगा। इसीलिए आई टोल्ड यू गाइज जस्ट टू रीड दिस इलस्ट्रेशन और कंपेयर करो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन सा सेंटेंस चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। सेंटेंस क्या क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है एक बार रीड आउट कर लो, दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ दिस पॉइंट नीड टू बी रिमेंबर, ठीक है। ओके, उसके बाद और क्या है, ओके मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो साइड मैंने ये बोला था कि आपका रिपोर्ट भी मॉडिफाइड होता है कि नहीं, एंड ओपिनियन भी मतलब मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड होता है, रिपोर्ट भी मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड होता है, ठीक है। तो वो किस किस केस में होता है वी विल सी। यहाँ पे अब उन्होंने यही चीज़ बताया हुआ है, जहाँ पे क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन होगा तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, ये सब चीज़ वही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट एक बार रीड आउट कर लें, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकती हूँ, जस्ट मैं आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ याद क्या क्या रखना है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ओके सो ये भी मैंने बताया आपको, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो हम लोग बेसिस फॉर ओपिनियन ही रखेंगे, और जो ये ऑडिटर का ओपिनियन है वहाँ पे अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हैं इन दैट केस हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ये सब ये दो 3 और 4 नंबर जो एलिमेंट है ऑडिटर का रिपोर्ट का इट विल बी चेंज, ठीक है। तो इन्होंने यही सब चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कैम आपका 5 मार्क्स में हो सके तो कैम पूछ देगा या फिर आपका रिपोर्ट का पार्ट पूछ देगा।
सो वीडियो वैसे भी हाफ एन आवर्स की हो गई है, सो आई विल कंटिन्यू दिस थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल, और बहुत चीज़ एक्सप्लेन करना बाकी है। सो आई होप यू गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कुछ कुछ पॉइंट वगैरह, और भी चीज़ क्लियर करूँगी, और मुझे वो भी एक्सप्लेन करना है, रिपोर्ट मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड कैसे होता है वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।